میرے مصطفیٰ آئے، دعوت و ہدایت کی ایک حسین شفق لے کر، میرے مصطفیٰ آئے، میرے مصطفیٰ آئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات چینل کے ادبی پروگرام فکر و فن شعر و سخن میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں عزیز بیلگامی اور فکر و فن شعر و سخن کی قسط 117 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ٹھوکروں میں رکھتی ہوں تخت و تاج کو اپنے، ٹھوکروں میں رکھتی ہوں تخت و تاج کو اپنے، ہے عزیز جاں سے بھی جو حیا ہماری ہے عزیز جاں سے بھی جو حیا ہماری ہے۔ ہم خلیفہ ہیں، خلافت ہے ہمارا منصب، ہم خلیفہ ہیں، خلافت ہے ہمارا منصب، حکم اللہ کا ہم پھر سے چلائیں چلیے۔ چھوٹی سی عنایت پہ خدا مان رہے ہو، چھوٹی سی عنایت پہ خدا مان رہے ہو، چھوٹی سی عنایت پہ خدا مان رہے ہو، انسان تو انسان ہے، خدا ہو نہیں سکتا۔ حوصلے سب کے بڑھاتے ہوئے جو بڑھ جائے، حوصلے سب کے بڑھاتے ہوئے جو بڑھ جائے، شخص ایسا ہی تو سالار کہا جاتا ہے۔ جی ہاں ناظرین، یہ فکر انگیز مشت از نمونہ اشعار ہماری آج کی معزز مہمان شاعرہ محترمہ سمینہ تاج صاحبہ ٹمکوری کے ہیں، جو بہت ہی کم وقت میں ریاست کرناٹک کے ادبی افق پر ایک درخشندہ ستارے کی طرح ابھری ہیں اور شعریت سے بھرپور کلام سے ہمارے اردو حلقوں کو چونکا دیا ہے، یہاں تک کہ انہیں اب عالمی مشاعروں میں بھی بڑے ہی اہتمام کے ساتھ، بڑے ہی تمطراق کے ساتھ بلایا جا رہا ہے۔ بنگلور سے صرف 80 کلومیٹر کے فاصلے پر آباد شہر ٹمکور سے تعلق کے سبب ان کا پہلا حق بنتا ہے کہ انہیں فکر و فن شعر و سخن پر پیش کیا جائے۔ اس سے پہلے کہ ہم ان سے گفتگو کا آغاز کریں، ہم ان کے تعارف پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ محترم جے اصغر سعید صاحب کی زوجہ محترمہ سمینہ تاج صاحبہ ٹمکوری خانوادہ حافظ جمیل احمد اور سیدہ شمشاد کے چشم و چراغ ہیں۔ کبھی تاج اور کبھی سمینہ تخلص فرماتی ہیں۔ اللہ نے موصوفہ شاعرہ کو لحن داؤدی سے بھی سرفراز فرمایا ہے۔ بڑے خوبصورت ترنم میں کلام پیش فرماتے ہیں۔ آپ اصلاً شہر حسن کی متوطن ہیں اور اس وقت ٹمکور میں قیام پذیر ہیں، اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں، انگریزی اور اردو میں ایم اے کے ساتھ بی ایڈ کی ڈگری بھی رکھتے ہیں اور اس وقت سرکاری اردو اسکول میں معلمہ ہیں۔ ان کے مشاغل میں علمی و ادبی کتب کا مطالعہ، تعلیم و تدریس، شعر و شاعری، نعت گوئی و نعت خوانی، پروگراموں کی نظامت، بچوں کے لیے ترنم سے منظومات ریکارڈ کرنا، مشاعروں میں خصوصاً آن لائن عالمی مشاعروں میں شرکت کرنا، اردو ٹی وی پروگراموں میں نعتیں پڑھنا، ضلع ٹمکور میں اردو صاحب وسائل
यानी रिसोर्स पर्सन की हैसियत से असातिज़ा की तरबियत करना, अदबी प्रोग्रामों की निज़ामत करना वगैरह वगैरह शामिल हैं। तकरीबन तमाम असनाफ़ अदब में तबा आज़माई फरमाती हैं, खुसूसन हमदनात और गज़लें उनकी मरगूब असनाफ़ सुखन हैं। पहली तख्लीक रोज़नामा सालार बेंगलोर में शाया हुई इशाअत कलाम का सिलसिला वसत इख्तियार करता चला जा रहा है। सालार के अलावा घूमता आईना में भी कलाम शाया हो रहा है। समीना ताज साहिबा की किताब के इंशाअल्लाह 2026 तक मंजर आम पर आने के इम्कानात हैं। यूट्यूब पर भी उन्हें मुशायरे पढ़ते हुए मुलाहिज़ा किया जा सकता है। नीज़ अतफ़ाल के लिए तरन्नुम से पेश की गई मंजूमात के वीडियोज़ भी यूट्यूब पर मौजूद हैं। सितंबर 2016 में बेस्ट टीचर अवार्ड से उन्हें नवाजा गया। हम बहुत खुशी महसूस करते हैं कि एक कसीरुल अतराफ सलाहियतों की मालिक शायरा आज हमारे दरमियान मौजूद हैं। आइए हम आज उन्हीं से उनके अपने बारे में, उनकी शायरी और दिगर उमूर के बारे में उन्हीं की ज़बानी उनके हालात से वाकिफ़ होने की कोशिश करते हैं। लेकिन पहले ये 4 मिसरे मोहतरमा समीना ताज साहिबा की नज़र है। मैं हैरान हूँ अदब की आँख से अब तक छुपी क्यों थी, मैं हैरान हूँ अदब की आँख से अब तक छुपी क्यों थी, नज़र भी फ़िक्र भी उसलूब भी था क्यों नहीं समझी, नज़र भी फ़िक्र भी उसलूब भी था क्यों नहीं समझी। यकीनन कदरदानी मैं न करते जुज़र से हम तो कम अज़ कम फ़िक्र व फ़न शेर व सुखन की रोशनी बनती, कम अज़ कम फ़िक्र व फ़न शेर व सुखन की रोशनी बनती। अल्लाह का शुक्र है कि वो दिन आ ही गया। मोहतरमा समीना ताज साहिबा के आप फ़िक्र व फ़न शेर व सुखन की रोशनी बनने जा रही हैं। हमारे स्टूडियोज़ में आपका दिली खैर मक़दम है। मोहतरमा समीना ताज साहिबा, सबसे पहले हम चाहेंगे कि आप अपनी शायरी का पस मंज़र बताएं कि ये ज़ौक़ कब से पैदा हुआ और क्या मुहर्रिकात बने कि आप एक मुख्तसर सी मुद्दत में अपनी आला शायरी के ज़रिए अदब नवाज़ों की तवज्जो को अपनी तरफ खींचने में कामयाब हुई। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन अम्मा बाद। सबसे पहले मैं अल्लाह ताला की बेहद शुक्रगुज़ार हूँ इस मौके पर, और इसके बाद सीधी चैनल के तमाम अराकीन और मुंतज़मीन और ख़ुसूसी तौर पर जनाब अज़ीज़ बिलगामी साहब की बहुत ममनून हूँ कि मुझे आपने इस लायक समझा कि मैं आकर यहाँ पर आपके स्टूडियो में आऊँ और अपने ख़यालात का इजहार कर सकूँ। मुझे आपने इस काबिल समझा, इसलिए मैं आप तमाम की शुक्रगुज़ार हूँ। तो आपका सवाल था, तो उस सवाल के लिए मैं फिर अल्लाह ताला की शुक्रगुज़ार हूँ कि मैं ऐसे घर में पैदा हुई जहाँ पर इल्म अदब की रोशनी पहले से ही मौजूद थी। मेरे वालिद मोहतरम हाफिज़ जमील अहमद एक हाफिज़ कुरान हैं, और आप जैसे कि जानते हैं कि हुफ़ाज़ कराम की उर्दू बहुत अच्छी हुआ करती है। तो मेरे वालिद की खुसूसी तौर पर मुझ पर बहुत ज़्यादा इनायतें रही और बहुत ज़्यादा मुझे तवज्जो देते थे बचपन से। वो चाहे उर्दू हो या फिर क़िरात पढ़नी हो, मुझ पर बहुत ज़्यादा उनकी तवज्जो की वजह से मैं समझती हूँ कि मैं आज कुछ बन पाई हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो उनका मिजाज भी शायराना था, और जब भी कोई अच्छी या बुरी हालत आती या फिर कोई भी ऐसी सिचुएशन आती जहाँ पर शिकस्त हाली हो, तो वहाँ पर हर चीज़ में खुशी हो या गम हो, वहाँ पर अशार के ज़रिए मुझे समझाने की कोशिश करते थे। मैं जब छोटी थी तो मुझे याद है कि मैं जब कभी मायूस हो जाती थी तो मुझे बताते थे कि जो हिचकिचा के रह गए सो रह गए, जिसने लगाई एड़ वो खंदक के पार था। क्या बात है, क्या तो बात है। इस तरह से मुझे हिचकिचाने से बचाने के लिए अशार कहा करते थे, और कभी कहा करते थे किसी चीज़ की कदरदानी करानी हो तो एक दिन का आखिर है लेकिन वो हवाओं का रुख बताता है। यही एग्जैक्टली शेर अब्बा ने मुझे कहे थे, मुझे अभी तक याद है। और उसके साथ साथ अल्लामा इक़बाल के अशार वगैरह अब्बा बहुत ज़्यादा मुझे सुनाया करते थे, और आज भी जब भी मिलती हूँ तो कोई शेर कहे बगैर मैं उनसे जुदा नहीं होती। वो बहुत ज़्यादा अशार के ज़रिए से मुझे
मुखातिब करते हैं। और अब्बा की तबीयत में कुछ ऐसा था कि जब सऊदी अरब में रहते थे अब्बा, और हमने खतूत वगैरह लिखा करते थे, ऑडियो कैसेट्स वगैरह भेजा करते थे, तो ऐसे अशार लिखकर भेजा करते थे जिसमें हम तमाम अम्मी और हम तमाम बच्चों के 6 बच्चों के जो है नाम आ जाते थे उसमें, ऐसे अशार कहा करते थे, जिसकी वजह से उनके अंदर वो तबीयत थी, तो वो तबीयत मुझे मुतासिर करती रही। ये तो सबसे पहले अब्बा की चीज़ थी। दूसरी चीज़ ये थी कि मेरे नाना साहब जो थे वो भी बहुत ज़्यादा इल्मी शख्सियत थे, मौलाना हज़रत के नाम से हासन में भी जाने जाते हैं, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। मैं जब पैदा हुई थी तो मेरा नाम उम्मे हसीबा था। उस वक्त मेरे नाना ने मुझ पर एक नज़म लिखी थी, हसीबा हसीबा ए उम्मे हसीबा, चमकता रहे तेरा जग में नसीबा। इस तरह से बहुत लंबी नज़म है। इसी तरह से मेरे मामा के जब बेटे पैदा हुए अजमल, तो उन पर भी एक नज़म लिखी थी कि मेरा अजमल जवां हो जा, वतन का पासबां हो जा, चुभे जो पाँव में कांटे तो पलकों से निकालूंगा। तो इस तरह से एक तवील नज़म है। तो इस तरह से मेरे नाना की तबीयत में भी थी, तो वो भी मुझे मुतासर करती रही। और अब्बा जब डायरी बताते थे मेरे दादा साहब की, तो उसमें मैंने बहुत अशार देखे हैं, उनकी राइटिंग देखी है, तहरीर भी माशाल्लाह बहुत खूबसूरत। तो ये सब चीज़ें मुझे मुतासर करती रही बचपन से। क्या बात। तो उसके साथ दूसरी चीज़ ये है, मैं GM मेमोरियल स्कूल की पहली बैच में मैं वहाँ से फारिग हुई हूँ, तो वहाँ पर मेरे एक उस्ताद रहा करते थे, उनका इंतकाल हो गया, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, निसारुल्लाह शरीफ, मोहतरम निसारुल्लाह शरीफ हज़रत। तो वो एक सब्जेक्ट लिया करते थे, शेर व नग़मा एक किताब थी जी। अल्लामा इकबाल के बहुत सारे उसमें कलाम थे। बज़ाहिर एक इंग्लिश के लेक्चरर थे वो, लेकिन एक एक शेर को लेकर इस तरह से समझाते थे कि मुझे बचपन से जो है अल्लामा इकबाल मेरे फेवरेट पसंदीदा शायर बन गए। तो इस तरह से मुझे मेरे निसारुल्लाह शरीफ सर बहुत ज़्यादा मेरे माविन व मददगार साबित हुए। जी, शादी के बाद मेरे ससुर, हालांकि वो उर्दू अंग्रेज़ी सब जानते थे, लेकिन उर्दू से बहुत ज़्यादा लगाव था, और मेरी हर एक तालीम के पीछे और मेरे शायराना सलाहियतों के परवान चढ़ाने में मेरे ससुर, मेरे अहल खाना, मेरे शौहर वगैरह ने मुझे बहुत साथ दिया। तो इस तरह से मुझे तमाम चीज़ें तहरीक देती रही, मैं और आगे बढ़ती रही। समीना साहब, मैंने सूरह कहफ की तिलावत सुनी है जी। आपने एक मरतबा सुनाया था मुझे एक क्लिप के ज़रिए से। जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैंने देखा कि इल्म तजवीद के तमाम कवानीन के साथ जी आपने आयतों को पढ़ा था। जी। तो क्या इल्म तजवीद भी आप जानती हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अब्बा ने मुझे बहुत ज़्यादा तवज्जो देकर मुझे परवान चढ़ाया है। तो अब्बा की तवज्जो हमेशा मुझ पर रहा करती थी, तो मैं उनसे ज़्यादा अटैचमेंट था मेरा, बहुत ज़्यादा मैं ये थी। तो मैं घर की बड़ी बच्ची थी, तो तवज्जो का मरकज़ भी थी। तो इस तरह से मुझे अब्बा जो है जहाँ भी ले जाते थे अब्बा मुझे, उनके हल्के में मैं जब छोटी थी तो मुझसे नात कहलवाते थे। चूँकि मैं हाफिज़ साहब की बेटी थी, तो मुझे सब हाथों हाथ लेते थे और फरमाइश करते थे कि कभी खिरत पढ़ें, कभी नात पढ़ें। इस तरह से मुझे बचपन से लोग भी मुझे अप्रोच करते थे कि मैं पढ़ूं, और जब पढ़ती थी तो माशाल्लाह मुझे प्राइजेस मिलते थे, इनामात मिलते थे, सताइश की जाती थी। ये तमाम चीज़ें मुझे आगे बढ़ने में। क्या बात है, क्या बात, माशाल्लाह, बहुत खूब। समीना ताज साहिबा, ये पस मंज़र यकीनन नौआमों शोरा के लिए मिसाली साबित होगा। आपके घर का जो माहौल है वो यकीनन किसी को भी इल्म के मैदानों में आगे बढ़ा सकता है। समीना जी, आप एक तजर्बाकार मुअल्लिमा हैं और अपने तालीमी हलक़ों में मारूफ़ भी हैं। इस वक्त आपकी नज़र में मिल्लत के तालीमी मसाइल क्या हैं, और आपकी नज़र में वो क्या तदाबीर हैं जो इन्हें हल करने में हमारी मदद कर सकते हैं? मिल्लत के मसाइल में अपने तालीमी मसाइल की बात की है जी। तो तालीमी मसाइल में सबसे पहले बात यह है कि तालीम से कुछ दिलचस्पी नहीं है हमारी कौम को, ये सबसे बड़ा मसला है। जी। तो अगर हम ब्रॉड कॉन्सेप्ट में देखें तो तालीम अगर लें तो असरी तालीम और दीनी तालीम दो भी आ जाते हैं, और दोनों से बेजारी है। जो लोग दीनी तालीम हासिल कर रहे हैं उनको कोई दिलचस्पी नहीं है असरी तालीम से, जो असरी तालीम हासिल कर रहे हैं उनको दिलचस्पी नहीं है दीनी तालीम से। होना ये चाहिए था कि हम दोनों को साथ में लेके चलते, और ऐसा भी नहीं है कि हमारे दीन इस्लाम में इसको कैटेगराइज नहीं किया गया है। इल्म फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिमिन व मुस्लिमा, इल्म की बात की गई है यहाँ पर, दीनी या फिर असरी तालीम की बात ही नहीं की गई है। तो यहाँ पर होता ऐसा है कि जो इधर जाता है वो उधर नहीं जाता, जो असरी तालीम हासिल करता है वो दीनी तालीम से बहुत दूर हो जाता है। हालांकि मैं जिस शहर में रहती हूँ वहाँ पर बहुत सारे स्कूल्स हैं माशाल्लाह। मौलाना खालिद बेग नदवी साहब की स्कूल है, DAT पब्लिक स्कूल
स्कूल जो बहुत अच्छी है, जहाँ पर दीनी और असरी तालीम की जी, दोनों का इम्तिजाज है। अली पब्लिक स्कूल है, वहाँ पर हम वालिदैन को चाहिए कि ऐसी जगहों में, ऐसे स्कूल्स में बच्चों का दाखिला कराएं। जी। बस हम लोग जाते हैं और दूसरे स्कूल्स में एडमिशन कर देते हैं जहाँ जी। पर बस असरी तालीम होती है। तो होगा यही कि बच्चे एक चीज़ से तो दूर हो ही जाएंगे ना। बहुत तो सही, ही है, बहुत और सही। इसका हल ये है कि बस हम दोनों मैदानों में हम आगे बढ़ें, दीनी और असरी तालीम दोनों पर तवज्जो दें। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बहुत बजा फरमाया मोहतरमा समीना ताज साहिबा। हालात जैसे कुछ भी हैं हमारे सामने हैं, और आपने जो पिन पॉइंट करके जो मसाइल और उनका हल आपने रखा, यकीनन इससे कोई भी मुतमईन हो सकता है। समीना जी, बचपन से मैंने आपसे सुना है कि आप बचपन से शेर व शायरी से लगाव रखते हैं, यहाँ तक कि 10वीं जमात में भी आप मुशायरों में शिरकत करती रही हैं। कुछ इस बारे में आप बताना चाहिए। जी जी, चूँकि मैं बहुत ज़्यादा तबीयत में मेरे मिजाज में चीज़ थी कि मैं शायरी करूं, मैं लिखती रही। और चूँकि मैं अभी कमसिन थी, उस वक्त एक ख़ातून थी जो लिखा करती थी, मैं उनके पास जाती थी, मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा है, तो उनके पास मैं जाती थी और इस्लाह के लिए वो बताती थी, करेक्शन करती थी, बड़े शफ़क़त के साथ करती थी। और उन्होंने मुझे बताया था कि आप अभी कमसिन हैं, ख़यालात में पुख्तगी की ज़रूरत है, अभी आपको 10th वगैरह का एग्ज़ाम देना है, तो आपको उस चीज़ पर तवज्जो देनी है, ये आप बाद में भी कर सकती हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने जैसा कहा मैंने वैसा ही किया। तो मैंने 10th स्टैंडर्ड के बाद जो है मैंने शेर सुखन को जारी रखा। तो इसमें बहुत हद तक जमील अहमद जमील साहब थे, वहाँ पर बहुत सारे शोरा थे जिनसे मैं इस्लाह लिया करती थी। उसके बाद शादी होने के बाद मेरा वो सिलसिला मुनक़ता हो गया। उसके बाद मैंने शादी के बाद कुछ दिनों तक मैं डॉक्टर शौकत शाहिद साहब, उनसे मेरी मुलाकात हुई, तो उस वक्त फिर से वो सिलसिला शुरू हुआ। तो अल्हम्दुलिल्लाह लिखती रही। बाद में इस साल में 27 फरवरी को जो है जनाब अजीज़ बिलगामी साहब से मुलाकात हुई। तो इसमें जो है मुझे बहुत ज़्यादा इस्लाह के लिए और आगे बढ़ने के लिए मुझे बहुत मौका मिला। तो इस तरह से अल्हम्दुलिल्लाह सफ़र जारी है, इंशाअल्लाह। दुआ करें। ये देखकर हैरत हुई समीना ताज साहिबा कि आपकी बयाज़ में 1998 के कुछ शेर और ख़ास तौर से मेरे अशार आपने तहरीर करके रखा है। बड़ी हैरत हुई थी मुझे, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? चूँकि हमारे हसन बड़ा ज़रख़ीज़ इलाक़ा है उर्दू के सिलसिले में, वहाँ पर मुशायरे बहुत ज़्यादा होते हैं बनिस्बत टुमकुर के। तो जब वो मुशायरे वगैरह हुआ करते थे तो मेरे वालिद मोहतरम मुझे ले जाया करते थे। मैंने अपनी डायरी में लिखा है कि 9 बजे से स्टार्ट हुआ था और तकरीबन 4 बजे ख़त्म हुआ था। तो उस वक्त आप भी आए थे, तो आपका अंदाज़ बयान देखा, आपका बॉडी लैंग्वेज देखी, किस तरह से आप शेर को कहते हैं। उसके बाद मुसलसल आपके अशार को पढ़ने का मौका मिला। मैंने अपनी डायरी में बहुत सारे दावत व हिदायत की है। एक ऐसे खुशगवार सज़ा है हमारे पास है, मताए क़ुव्वते ईमान का जोया कहाँ हूँ मैं। ये तमाम चीज़ें जो तरन्नुम और जो कलाम है, इसका इम्तिज़ाज इस तरह से आपने किया है कि किसी को भी गर्वेदा कर लेता है। तो चूँकि मैं कमसिन थी उस वक्त, आपका लहजा और आपका कलाम मेरे कानों में जैसे कि रस घोल रहा था, मुझे बहुत मुतासिर करता था। और चूँकि जमात से जुड़ी हुई थी, वहाँ पर दावत व हिदायत की खसी शफ़क़ लेकर तो बच्चे की ज़बान पर थी, तो वो पढ़ा करते थे। मैं खुद मेरे स्कूल के बच्चों को हमनात वगैरह में ये सिखाया करती थी। जी। तो बहुत ज़्यादा ये है। तो मेरा कभी ख्वाब था कि मैं भी आप जैसी शायरी करूं। तो कभी कभार मैं सोचती हूँ कि जो फ़िक्र मेरी जो कलाम में नज़र आती है वो आपसे मुतासिर होने के बाद हुई। बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे भी माजी में पहुँचा दिया, और वो जो नॉस्टैल्जिक जो जज्बात होते हैं, यानी मर्ज़ माजी जिसको कहते हैं, उसमें आपने मुझे मुब्तला कर दिया और मैं बहुत पीछे चला गया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। समीना जी, एक और पर्सनल सवाल है जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। हम जब आपके कवाइफ पर नज़र डालते हैं तो हमारे सामने एक बहुत ही ज़्यादा तालीम याफ्ता शख्सियत का पैकर उभर कर सामने आता है। मेरा ख़्याल है आपकी तालीमी सलाहियत के पेश नज़र अब तक आपको किसी यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर होना चाहिए था। क्या रुकावटें थीं आपकी तरक्की की राह में? नीज़ ये कि क्या
आप पीएचडी के सिलसिले में भी सोच रही हैं। पीएचडी के बाद आपके ऊंचे मनसब तक पहुंचने की राह आसान हो सकती है, कोई इरादा आपके पेश नज़र है? जी मोहतरम, एक औरत के लिए घर में काम करने के साथ साथ स्कूल में काम करना एक बड़ा जद्दोजहद का काम बहुत है, सही बात। एक मुजाहिदा है मेरे लिए। बहुत सही। तो वहाँ पर बच्चों के साथ इंसाफ करने के लिए बड़ा मुश्किल होता है अगर हम दूसरा टास्क ले लें तो। और डिपार्टमेंट वाइज इस तरह से सरकारी मौलिमा होने के नाते बहुत ज़्यादा काम होते हैं, बहुत ज़्यादा नए नए प्रोग्राम्स होते हैं जिसको हम लोगों को साथ में लेकर चलना होता है। हर साल अलग अलग प्रोग्राम्स होते हैं बच्चों की बहबूदी के लिए। अगर उसको हमें सही तरीके से निभाना है तो घर में भी मेहनत करनी पड़ती है और स्कूल में भी मेहनत करनी पड़ती है, और वक्त की तंगी की वजह से जो है हम आगे बढ़ने से रुक जाते हैं। तो इस तरह से अल्हम्दुलिल्लाह मैंने केसेट भी क्लियर किया है। इरादा है कि मैं इंशाल्लाह पीएचडी करूं, इंशाल्लाह पीएचडी करूंगी, और इंशाल्लाह इरादा है कि आप जैसी एक अजीम हस्ती पर पीएचडी करूं तो मुझे बहुत खुशी होगी कि आप मेरा मौजू हों। तो ये चीज़ है इंशाल्लाह। और ज़रूरी ये नहीं कि पढ़ने के बाद एक असिस्टेंट प्रोफेसर ही हूँ। मैंने जो तालीम हासिल की है यकीनन मेरी शेर व शायरी में वो मददगार साबित हो रहा है। तो मुझे बहुत खुशी है कि मैंने जो कुछ भी पढ़ा है वो मेरे साथ है और हमेशा साथ रहेगा, और इंशाल्लाह मैं वहाँ तक भी पहुँचने की कोशिश करूँगी इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी नेक तमन्नाएँ आपके साथ हैं। बहुत शुक्रिया। फ़िक्र फ़न शेर व सुखन की नेक तमन्नाएँ आपके साथ हैं। बहुत शुक्रिया। अब कभी मौका मिला तो हम डॉक्टर समीना ताज साहिबा से मुलाकात करते होंगे इंशाअल्लाह ताला। इंशाल्लाह। हमने देखा है कि जहाँ आप अच्छा कलाम लिखती हैं वहीं इसे खूबसूरत तरन्नुम में पढ़ती भी हैं माशाअल्लाह। क्या आज आप हमारे नाज़रीन को भी अपने कलाम और तरन्नुम से मुस्तफ़िद व महज़ूज़ होने का मौका इनायत फरमाएंगी? कम से कम 2 गज़लें हम आपसे सुनना चाहेंगे। ज़रूर। तो एक ताज़ा गज़ल आप तमाम के सामने पेश करती जी हूँ। जी जी। साफ कहते हैं तो इज़हार कहा जाता है, साफ कहते हैं तो इजहार कहा जाता है। इज़हार कहा जाता है, साफ कहते हैं तो इज़हार कहा जाता है। क्या बात, क्या बात। आँख झुक जाए तो इकरार इक़रार कहा जाता है। कहा जाता क्या बात है, क्या बात। है। आँख झुक जाए तो इक़रार कहा जाता है। हक़ बयानी पे मेरी कैसी पहरेदारी, हक़ बयानी पे मेरी कैसी पहरेदारी, मुँह जो खोलूं तो खबरदार क्या बात है, कहा क्या जाता है। क्या बात है। मुँह जो खोलूं तो खबरदार कहा जाता है। झूठ फरमाते हैं खस्में वो खुदा की खाकर, जी, क्या बात। झूठ फरमाते हैं खस्में वो खुदा की खाकर, वाह। सच वही है जो सरे दार कहा जाता है, सच वही है जो सरे दार कहा जाता है। बहुत शुक्रिया। तंग दस्ती में गुजारी हो सवाली न बने, तंग दस्ती में गुजारी हो सवाली न बने, ऐसे लोगों को ही खुददार कहा जाता है, ऐसे लोगों को ही खुददार कहा जाता है। क्या बात है,
کیا محترم عزیز صاحب یہ شعر آپ کے حوالے سے. جی بہت شکریہ بہت شکریہ. حوصلے سب کے بڑھاتے ہوئے جو بڑھ جائے, بہت شکریہ. حوصلے سب کے بڑھاتے ہوئے جو بڑھ جائے, شخص ایسا ہی تو سالار کہا جاتا ہے, کیا بات ہے, شخص ایسا ہی تو سالار کہا جاتا ہے. خصوصی توجہ چاہتی ہوں. جی جی عطا کریں. کون سی بات کہاں کہنی ہے, کب کہنی ہے, کیا بات ہے, کیا بات ہے, کون سی بات کہاں کہنی ہے, کب کہنی ہے, جو سمجھ جائے سمجھدار کہا جاتا ہے. کون سی بات کہاں کہنی ہے, کب کہنی ہے, کون سی بات کہاں کہنی ہے, کب کہنی ہے, جو سمجھ جائے سمجھدار کہا جاتا ہے, جو سمجھ جائے سمجھدار کہا جاتا ہے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. ہاں سنائیے دوسری غزل. جی. شر کو پھیلانے لباس مختصر رکھا گیا, شر کو پھیلانے لباس مختصر رکھا گیا, شر کو پھیلانے لباس مختصر رکھا گیا, اور حیا کا جادہ بے حد پرخطر رکھا گیا, اور حیا کا جادہ بے حد پرخطر رکھا گیا. اے بہادر شاہ ظفر دل پر تیرے بیتی تھی کیا, اے بہادر شاہ ظفر دل پر تیرے بیتی تھی کیا, تھالی میں بچوں کا جب سر کاٹ کر رکھا گیا, تھالی میں بچوں کا سر جب کاٹ کر رکھا گیا, ساری خلقت اس کے تابع یہ جتانے کے لیے, ساری خلقت اس کے تابع یہ جتانے کے لیے, بحر و بر اور روز و شب شمس و قمر رکھا گیا, بحر و بر اور روز و شب شمس و قمر رکھا گیا. دوبارہ اس کو پڑھیے. اس کو بہت شکریہ. ساری خلقت اس کے تابع یہ جتانے کے لیے, ساری خلقت اس کے تابع یہ جتانے کے لیے, بحر و بر اور روز و شب شمس و قمر رکھا گیا, بحر و بر اور روز و شب شمس و قمر رکھا گیا. توجہ چاہتی ہوں. عطا کریں. آدم و حوا کا بس لینا تھا رب کو امتحان, آدم و حوا کا بس, آدم و حوا کا بس لینا تھا رب کو امتحان,
रूबरू जन्नत में उनके एक शजर रखा गया, रूबरू जन्नत में उनके एक शजर रखा गया। क्या बात है, क्या बात है। बहुत शुक्रिया। बांट ले हम दर्द को, पाए सुकूने कल्ब को, जी बांट ले हम दर्द को, पाए सुकूने कल्ब को, जिंदगानी के सफर में हम सफर रखा गया, जिंदगानी के सफर में हम सफर रखा गया। वक्त पर पहुंची हूँ। शिद्दते हमसे परेशान हो समीना किस लिए, शिद्दते हमसे परेशान हो समीना किस लिए, जान लो माँ की दुआओं में असर रखा गया, जान लो माँ की दुआओं में असर रखा गया। क्या बात है, क्या बात है। बहुत शुक्रिया। हक बयानी पे मेरे कैसी है पहरेदारी, हक बयानी पे मेरे कैसी है पहरेदारी, मुँह जो खोलूँ तो ख़बरदार कहा जाता है। वाह, बहुत खूब। सारी खलकत उसके ताबे ये जताने के लिए बहरोबर और रोज़ व शब शम्सो कमर रखा गया। क्या बात है, क्या बात है। इन शेरों को देखने के बाद, इन शेरों को सुनने के बाद महसूस होता है कि हालात की सरसराहट पूरी तरह नुमाया नज़र आती है। बहुत बहुत मुबारकबाद मोहतरमा समीना साहिबा। अल्लाह करे ज़ोर कलम और ज़्यादा, अल्लाह करे और भी आला हो तरन्नुम। मोहतरमा समीना साहिबा, फ़िक्र फ़न शर सुखन आप देखती रहिए। ये बताइए कि आपको ये चैनल, ये प्रोग्राम कैसा लगता है? बहुत पहले से मैं मोहतरम प्रोग्राम देखती आ रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पर कौमी और बैनुल अक़वामी तमाम शोरा और साहिब किताब लोगों को और बहुत सारे इल्मी व क़लमी लोगों को यहाँ पर बुलाया जाता है। हम लोगों को इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल होता है, क्योंकि हम सारी दुनिया घूम कर उनसे नहीं मिल सकते और उनके ख़यालात को मालूम नहीं कर सकते। ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप बुलाते हैं, उनसे दूसरों को मानूस करवाते हैं। ये बहुत अच्छा चैनल है, मैं देखती हूँ और मुझे बहुत खुशी होती है कि यहाँ पर बहुत बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट भी आ चुके हैं। साजिदा साहबा आ चुके हैं, ज़ुबैर साहब आ चुके हैं, साजिदा साहब जो कि अंडमान से हैं वो आ चुकी हैं, और इस तरह से बहुत सारे ख़वातीन और मर्द आ चुके हैं। स्पेशली जब मैं ख़ुसूसी तौर पर ख़वातीन को देखती हूँ तो बहुत खुशी होती है कि वो यहाँ पर आके बात करती हैं। बस ये मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं भी यहाँ तक आ पाऊँगी, तो मुझे बहुत खुशी है कि आप लोगों ने मुझे इस काबिल समझा। यहाँ पर आकर बहुत खुशी हो रही है कि मुझे अपने आप को मुतारफ़ कराने का मुझे मौका मिला, मेरे ख़यालात का इजहार करने का मुझे आपका है जी। तो बहुत तेज़ी से दौड़ रहा है। अब हम हमारे इस इंटरव्यू में आखिरी मराहिल में हैं। आखिर में हम चाहेंगे कि एक सीनियर और तजुर्बाकार मुअल्लिमा की हैसियत से अपने तालीमी तजुर्बात की रोशनी में हमारी नौजवान नस्ल के तलबा व तालिबात के लिए एक मौसर पैगाम छोड़ जाएं। हम ममनून रहेंगे आपके। चूँकि मैं तालीम व तदरीस से जुड़ी हुई हूँ, मैं अक्सर देखा करती हूँ कि हमारी कौम के खुसूसी तौर पर बच्चे बहुत ज़्यादा ड्रॉप आउट्स हैं स्कूल्स में। जी जी। बहुत ज़्यादा उसमें लड़के हैं जो कि बहुत ज़्यादा स्कूल से दूर रहते हैं। अगर कुछ उम्र को वो बढ़ जाएं तो वालिदैन क्या करते हैं, उनको किसी काम में या फिर किसी वालिद साहब अपने साथ ले जाते हैं। इस तरह से बच्चों को तालीम से दूर कर देते हैं। मैंने हाई स्कूल्स में देखा है, वहाँ पर कन्नड़ा और इंग्लिश मीडियम में
دیکھا ہے کہ بہت ساری لسٹ میں ہمارے بچوں کے, ہماری قوم کے بچوں کے ہی نام ہوا کرتے ہیں, جو کہ اسکول کو بالکل آتے ہی نہیں, کبھی دیکھا بھی نہیں. اسکول ایڈمیشن تو ہو جاتے ہیں, وہاں کے جو بھی ضروری چیزیں ہوتا ہیں, سائیکل, یونیفارم, کتابیں, وہ بھی لے جاتے ہیں, لیکن اس کے بعد جو ہے اسکول کو مسلسل لانے کا نہیں رہتا. تو بار بار کانٹیکٹ کرنے پر بھی بتایا جاتا ہے. پہلے تو والدین ان کو عادت سے ڈال دیتے ہیں مشغول کر کے اپنے کاموں میں, ان کو وہ چسکا لگ جاتا ہے. وہاں پر کام کرتے کرتے کبھی کبھار وہ بچے کبھی سائیکل شاپ میں, کہیں دوسرے بیڑی کے کام میں لگ جاتے ہیں. تو اس کے بعد انہیں غیر ضروری بچے جو ملتے ہیں ان کے ساتھ غیر ضروری چیزیں سیکھ لیتے ہیں. سیکھنے کے بعد اس کو وہ چیزوں کا چسکا لگ جاتا ہے ان لوگوں کو, اور آزاد طبیعت بن جاتی ہے. جب ان کو اسکولس میں لا کے ان کو بٹھایا جاتا ہے تو ان کے آزاد طبیعت پر بہت بڑی گراں گزرتی ہے. جب بیل وغیرہ کا سسٹم ہوتا ہے, وہاں پر بیٹھنا ہوتا ہے, وہاں پر تمیز سیکھنی پڑتی ہے, وہاں پر ڈسپلن ہوتا ہے, ان کی سمجھ میں وہ باتیں نہیں آتی. تو بچہ اگتا جاتا ہے. بڑے بڑے لڑکے پھاند کر اسکول جو ہے کمپاؤنڈ بھاگ جاتے ہیں. 9ویں اور 10ویں جماعت کے بچوں کو دیکھا گیا ہے. اس میں میں والدین کو ذمہ دار ٹھہراتی ہوں, چونکہ والدین کیا کرتے ہیں ہمارے قریوں میں خصوصی طور پر, جو کچھ بھی پروگرامز ہوتے ہیں خاندان میں, کسی کی فاتحہ ہو کسی کے گھر میں, یا پھر کسی کی شادی بیاہ ہو, یا رسم و رواج ہو, یا پھر کہیں پہ سندل یا عروس ہو, تو وہاں پر کیا کرتے ہیں اپنے بچوں کو ساتھ میں لے جاتے ہیں. دوسرے گاؤں میں ہو وہاں بھی لے جاتے ہیں, اور وہاں جا کر بس شام کو نہیں لوٹتے بلکہ رشتہ داروں کے گھر میں رہتے ہیں, اور 2-3 دن کے بعد لوٹتے ہیں. اسی طرح سے ایک مہینے میں 2-3 مرتبہ اگر ہو جائے تو بچوں کی اٹینڈنس کہاں ہوگی, حاضری کہاں ہوگی, اساتذہ کیا پڑھا پائیں گے. تو اس طرح سے بچوں کی دلچسپی کو ڈسٹریکٹ کیا جاتا ہے. تو یہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ بچے جب تک پڑھ لکھ کر کچھ قابل نہ بن جائیں, ان کی تعلیم کے پیچھے لگے رہیں, کچھ تو قربانی دیں. تو بچوں کو اس سے دلچسپی ہوگی تو بچے ڈراپ آؤٹ ہونے کی وجہ سے کیا ہو جاتا ہے, اسکول میں جو تسلسل ہوتا ہے پڑھائی کا, وہ لنک ٹوٹ جاتی ہے. جب وہ بچہ 2-4 دن کے بعد یا پھر 1 ہفتے کے بعد آتا ہے تو اساتذہ کو بھی سکھانے کے لیے تکلیف ہوتی ہے, اور بچے کو خود وہاں کا ماحول نامانوس سا نظر آتا ہے. چونکہ بچہ جواب دے نہیں پاتا تو اس کو انفیریورٹی میں مبتلا ہونا پڑتا ہے, اور اپنے آپ کو جو ہے بہت کمتر محسوس کرتا ہے. تو اس کے ذمہ دار والدین ہیں. تو بچوں کو جو ہے اگر بچوں میں دلچسپی قائم رکھنی ہے تو والدین کو بھی دلچسپی قائم رکھنی ہے. بچوں کی تعلیم کا لوگوں کو بتانا کہ نہیں بچے کا اسکول ہے, اسکول کا اٹینڈنس چلے جائے گی, حاضر غیر حاضر ہو جائے گا تو کیا ہوگا. اس کا اگر بار بار بچوں کے سامنے تذکرہ کرتے رہیں گے تو بچوں کو علم کی اہمیت معلوم ہوگی, اور بچے اسکول کو ٹھیک سے آئیں گے. تو دیکھیے اب ہمارے اسکول کے بچے, مطلب ہمارے جو قوم کے بچے ہیں, اسکول کو بھی ادھر سے ٹھیک سے نہیں آتے, اور وہاں پر راستوں پر دیکھیے آپ نشے کی عادت میں بچے جو ہے کچھ سونگ رہے ہوتے ہیں, کچھ کھا پی رہے ہوتے ہیں, کچھ تھوک رہے ہوتے ہیں, اور وہ نہیں تو اس کے ساتھ ساتھ کبھی موبائلس لے کر کسی نکڑ پر بیٹھے ہوئے نظر آئیں گے. آپ ہمارے قوم کی حالت دیکھیے کسی مسلم ڈومینیٹڈ ایریا میں, آپ کو یہی نظر آئے گا. دل بہت روتا ہے اور سنجیدہ ہو جاتا ہے جب میں ایسے حالت کو دیکھتی ہوں. لیکن کیا کہیے گا کہ ان کو اسی میں مزہ آ رہا ہے. تو اسی لیے میں ان کے لیے ایک بات کہوں گی. فانی بدایونی نے جو ہے ایک شعر کہا تھا, چک ذائق علم خدا کے لیے فانی, چک ذائق علم خدا کے لیے فانی, ایسا بھی تجھے کیا اپنی جہالت میں مزہ ہے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. بہت شاندار پیغام سمینا جی, بہت بہت شکریہ. امید کہ ہماری نئی نسل محترمہ سمینا تاج صاحبہ جیسی معلمہ کے پیغام کو گراہ میں باندھ لے گی اور اپنی زندگی کا سفر کامیابی کے ساتھ جاری رکھے گی. بہت بہت شکریہ. ناظرین, یہ تھی محترمہ سمینا تاج تمکری صاحبہ جو ہماری دعوت پر آج ہمارے چینل فکر و فن شعر و سخن میں ہم سے محو گفتگو تھیں. ہم اپنی جانب سے اور سیدھی بات چینل فکر و فن شعر و سخن کے جملہ وابستگان اور ہمارے ناظرین و سامعین جو سارے عالم میں پھیلے ہوئے ہیں کی جانب سے ہم آج کی معزز مہمان محترمہ تاج تمکری صاحبہ کی خدمت میں ہدیہ تشکر پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنی بے پناہ مصروفیات میں سے وقت نکال کر, بلکہ اپنی ملازمت سے ایک دن کی چھٹی لے کر یہاں تشریف لائیں اور اپنے گراں قدر خیالات سے ہم سب کو مستفیض اور اپنے کلام سے محظوظ ہونے کا موقع عنایت فرمایا. ہم سب دعاگو ہیں کہ اللہ تعالیٰ موصوفہ کی عمر دراز فرمائے اور ملت کو اور قوم کو ان سے بیش از بیش استفادے کا موقع نصیب فرمائے. آمین.
सुम्मा आमीन। नाजरीन, अब हमारा वक्त ख़त्म हुआ। हम जल्द ही किसी और अदबी शख्सियत के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होते हैं। तब तक अज़ीज़ बेलगामी और मोहतरमा समीना ताज साहिबा को इजाज़त दें। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत शुक्रिया सर। मेरे मुस्तफ़ा दावत हिदायत की एक हंसी शफक लेकर मेरे मुस्तफ़ा